سب سے پہلے بات کریں نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا کفایت شعاری کے لیے اہم اقدام۔ وزیر اعلیٰ نے سرکاری فنڈز کے بے جا استعمال پر پابندی عائد کر دی ہے۔ وزیر اعلیٰ آفس میں کھانوں اور دعوتوں کو روک دیا گیا ہے۔ ذرائع کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ آفس میں دوپہر کے کھانوں پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ اس بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ علی رامے موجود ہیں۔ علی رامے، آگاہ کیجیے اس بارے میں۔ جی بالکل، ایوان وزیر اعلیٰ پنجاب میں جو کھانے پینے کی یعنی کہ انٹرٹینمنٹ کے اوپر جو ایکسپینڈیچر تھے اس پر نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے اہم فیصلہ کیا ہے کہ آسٹیرٹی میئرز کو اپناتے ہوئے اب یہ ایکسٹرا جو ایکسپینڈیچرز ہیں وہ نہیں کیے جائیں گے۔ تو اس پر انہوں نے واضح طور پر سرکاری افسران کو ہدایت دی ہیں اور ہمارے ذرائع نے کنفرم کیا ہے کہ اب آفیسر جو ہیں وہ دوپہر کا کھانا بھی یہاں سے نہیں کھائیں گے اور چائے پانی کے جو اخراجات ہیں وہ بھی نہیں ہوں گے۔ صرف مہمانوں کے لیے ہی چائے پانی کا انتظام جو ہے وہ کیا جائے گا، لیکن جو آفس کے اندر ایکسپینڈیچرز ہیں ان کو کنٹرول کیا جائے گا۔ اور ساتھ ہی اب جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب بھی اپنا اور اپنے اسٹاف کا جو بھی ایکسپینڈیچر ہوگا انٹرٹینمنٹ کے لیے وہ خود سے ہی اپنی جیب سے اپنے اخراجات جو ہے وہ استعمال کریں گے۔ اب اس پر انہوں نے واضح یہ پالیسی جو ہے وہ دے دی ہے اور ایوان وزیر اعلیٰ کے افسران کو بھی آگاہ کر دیا گیا ہے کہ فوری طور پر اس پالیسی پر عمل درآمد کیا جائے گا، کیونکہ سابقہ دور حکومت میں لاکھوں کروڑ روپے کا بجٹ جو ہے وہ سالانہ ایلوکیٹ کیا جاتا ہے صرف انٹرٹینمنٹ کی بات میں، کھانے پینے کی بات میں۔ تو اب انہوں نے اپنے خاص طور پر ٹرم میں یہ ہدایت جاری کی ہے کہ اس پر اب سختی سے عمل ہوگا اور جو ایکسٹرا ایکسپینڈیچرز ہیں وہ نہیں کیے جائیں گے، کیونکہ یہ عوام کا پیسہ ہے۔ ٹھیک ہے علی رامے، بہت شکریہ آپ کا۔ شیخ اعجاز ڈائلسس سینٹر جناح اسپتال میں بونس دینے کی تقریب جاری ہے۔ چیئرمین بورڈ آف مینجمنٹ جناح اسپتال گوہر اعجاز نے ملازمین میں نقل لیے چلے۔ ادھر دیکھیں، سامنے دیکھ۔ سسٹر سبینہ، سسٹر زاہدہ، زرش قمر، علم مجید، مدینہ اکرم۔ پیرامیڈیکل سٹاف کی بھی کبھی کوئی شکایت ہو، کسی نرس کی کبھی شکایت ہو، کسی ڈاکٹر کی کبھی شکایت ہو، تو ہم جب کہتے ہیں کہ ہمارے ہاسپٹلز میں اسپیشلی گورنمنٹ ہاسپٹلز میں لوگوں کا دھیان ہمارے نرسز، پیرامیڈیکل یا ڈاکٹرز، تو میں ان کو کہوں گا ضرور ہمارے ڈائلسس سینٹر میں آ کے ہمارے ڈاکٹرز کو، ہمارے نرسز کو، ہمارے پیرامیڈیکل سٹاف کو دیکھیں۔ اللہ نے یہاں پہ فرشتے بھیجے جو کہ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام گورنمنٹ ہاسپٹلز میں ڈاکٹر بلال محی الدین کو بھی کہوں گا کہ اپنے ہاسپٹل کے سٹاف کو ضرور کہیں کہ آ کے یہاں دیکھیں۔ میں اس جگہ کو اپنے ہاسپٹل کا ریاض الجنہ کہتا ہوں کہ الحمدللہ 17 سال 4 مہینے سے یہ امانت آپ کے پاس ہے اور آپ لوگ اس امانت کی حفاظت کر رہے ہیں۔ تو اسٹینڈنگ اویشن فار آل آف یو بائی آل دا گیسٹ ہو آر ہیئر۔ ہمارا سفر تھا 12 مشین سے، آج یہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈائلسس سینٹر ہے الحمدللہ۔ آپ تقریباً 50,000 ڈائلسس سالانہ کرتے ہیں فری آف کاسٹ۔ خدا تعالیٰ نے رحمت فرمائی کہ اللہ نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ان لوگوں کی ہم خدمت کر سکیں، اپنے مریضوں کی، جن کو میں کہتا ہوں کہ آپ نے ان کا ایسے ہی خیال رکھنا ہے جیسے اپنے والدین کا، بہنوں کا، بھائیوں کا رکھنا ہے۔ مجھے اس پہ فخر ہے کہ جب میں آتا ہوں تو میں پوچھتا ہوں کہ ہمارے کون سے سٹاف ممبر، ڈاکٹر بلال کو میں ابھی بتا رہا تھا کہ جو 90% کراس کرے اس کو ہم اس سیریمنی میں بلاتے ہیں اور اس کو ہم اس کا انعام دیتے ہیں۔ تو میں صرف یہ پوچھتا ہوں کہ اس دفعہ کون رہ گیا؟ تو جب ہم نے یہ سیریمنی سٹارٹ کی اور یہ سٹینڈرڈز بنائے ڈاکٹر بلال، تو کوئی کوالیفائی نہیں کرتا تھا 3 مہینے۔
अब हमें ढूंढना पड़ता है कि कोई ऐसा भी हो जो क्वालिफाई ना किया हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोगों को सिर्फ एक मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए, क्योंकि हमने कभी मैनेजमेंट सिस्टम दिया नहीं, तो वो मैनेजमेंट सिस्टम और उसके ऊपर उनको एतबार आ जाए, SOPs उनको दे दें, तो ऐसी वजह नहीं है हमारे लोग नाफा। तो कमी हमारे डॉक्टर्स में, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ में, हमारी मैनेजमेंट में नहीं है, बल्कि उन निज़ाम बनाने वालों में से है जो निज़ाम नहीं बना सके कि इनसे काम कैसे करें। यही लोग अमेरिका जाते हैं, UK जाते हैं, सऊदी अरेबिया जाते हैं, हमारे बेस्ट डॉक्टर्स कहलाते हैं, बेस्ट पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सेज कहलाते हैं, यहाँ क्यों नहीं? तो SOP हमारे सिस्टम्स एक दफ़ा बना दें और उसको ऑर्गेनाइज कर लें। हमने इस बात को इस VIP कल्चर में हमने कहा कि हमारा पेशेंट हमारा VIP। मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि मैं किसी पेशेंट को यहाँ एडमिट कर सकूँ, मेरे पास अथॉरिटी ही नहीं, क्योंकि अगर मैं किसी को एडमिट करूँगा तो इसका मतलब है जो एक पेशेंट डायलिसिस करा रहा है मैं उसको उतार दूँ और कोई नया पेशेंट ले लूँ, फिर किसी और की सिफारिश आएगी तो मैं उसको उतार के नया, तो मैं कैसे कर सकता हूँ कि मैं उसकी ज़िंदगी जो उसको अल्लाह ने दी हुई है और उसने 1 साल अपना इंतज़ार करके अपनी बारी पे यहाँ डायलिसिस सेंटर आया, मैं उसकी बारी किसी और को दे दूँ, तो ये है इंसाफ। उसके बाद है क्वालिटी। तो हमारे स्टाफ मेंबर्स जब आप उनको SOP दे देंगे तो वो ऐसा हो नहीं सकता वो फॉलो ना करें। 1 महीना नहीं करेंगे, 2 महीना नहीं करेंगे, 3 महीना नहीं। आप जब उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे तो आपके सामने ये डिपार्टमेंट मौजूद है। हमारे पेशेंट्स, हम कहते हैं सिर्फ शिकायत करते हैं, ऐसा नहीं। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने आपको बता रहे हैं कि तकरीब जारी है जहां पर ग्रुप लीडर एप्टमा और जिना अस्पताल के चेयरमैन इस वक्त खिताब कर रहे थे। सामने देख। सिस्टर समीना, सिस्टर जायदा, ज़रिश कमर, अनम मजीद, मरीना अकरम। पैरामेडिकल स्टाफ की भी कभी कोई शिकायत हो, किसी नर्स की कभी शिकायत हो, किसी डॉक्टर की कभी शिकायत हो, तो हम जब कहते हैं कि हमारे हॉस्पिटल्स में, स्पेशली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में लोगों का ध्यान हमारे नर्सेज, पैरामेडिकल या डॉक्टर्स, तो मैं उनको कहूँगा ज़रूर हमारे डायलिसिस सेंटर में आके हमारे डॉक्टर्स को, हमारे नर्सेज को, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ को देखें। अल्लाह ने यहाँ पे फरिश्ते भेजे हैं जो कि लोगों की खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह ताला इन तमाम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, मैं डॉक्टर बिलाल मोइनुद्दीन को भी कहूँगा कि अपने हॉस्पिटल के स्टाफ को ज़रूर कहें कि आके यहाँ देखें। मैं इस जगह को अपने हॉस्पिटल का रियाजुल जन्ना कहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 17 साल 4 महीने से ये अमानत आपके पास है और आप लोग इस अमानत की हिफाजत कर रहे हैं। तो a standing ovation for all of you by all the guests who are here. हमारा सफ़र था 12 मशीन से आज ये पंजाब का सबसे बड़ा डायलिसिस सेंटर है। अल्हम्दुलिल्लाह आप तकरीबन 50,000 डायलिसिस सालाना करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। खुदा ताला ने रहमत फरमाई कि अल्लाह ने हमें इस काबिल बनाया कि इन लोगों की हम खिदमत कर सकें, अपने मरीज़ों की, जिनको मैं कहता हूँ कि आपने इनका ऐसे ही ख्याल रखना है जैसे अपने वालिदैन का, बहनों का, भाइयों का रखना है। मुझे इस पर फ़ख्र है कि जब मैं आता हूँ तो मैं पूछता हूँ कि हमारे कौन से स्टाफ मेंबर, डॉक्टर बिलाल को मैं अभी बता रहा था कि जो 90% क्रॉस करे उसको हम इस सेरेमनी में बुलाते हैं और उसको हम उसका इनाम देते हैं।
तो मैं सिर्फ ये पूछता हूँ कि इस दफ़ा कौन रह गया। तो जब हमने ये सेरेमनी स्टार्ट की और ये स्टैंडर्ड्स बनाए डॉक्टर बिलाल, तो कोई क्वालिफाई नहीं करता था 3 महीने। अब हमें ढूंढना पड़ता है कि कोई ऐसा भी हो जो क्वालिफाई ना किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोगों को सिर्फ एक मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए, क्योंकि हमने कभी मैनेजमेंट सिस्टम दिया नहीं, तो वो मैनेजमेंट सिस्टम और उसके ऊपर उनको एतबार आ जाए, SOPs उनको दे दें, तो ऐसी वजह नहीं है हमारे लोग नाफा। तो कमी हमारे डॉक्टर्स में, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ में, हमारी मैनेजमेंट में नहीं है, बल्कि उन निज़ाम बनाने वालों में से है जो निज़ाम नहीं बना सके कि इनसे काम कैसे करें। यही लोग अमेरिका जाते हैं, UK जाते हैं, सऊदी अरेबिया जाते हैं, हमारे बेस्ट डॉक्टर्स कहलाते हैं, बेस्ट पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सेज कहलाते हैं। यहाँ क्यों नहीं? तो SOP, हमारे सिस्टम्स एक दफ़ा बना दें और उसको ऑर्गेनाइज कर लें। हमने इस बात को इस VIP कल्चर में हमने कहा कि हमारा पेशेंट हमारा VIP। मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि मैं किसी पेशेंट को यहाँ एडमिट कर सकूँ, मेरे पास अथॉरिटी ही नहीं, क्योंकि अगर मैं किसी को एडमिट करूँगा तो इसका मतलब है जो एक पेशेंट डायलिसिस करा रहा है मैं उसको उतार दूँ और कोई नया पेशेंट ले लूँ, फिर किसी और की सिफारिश आएगी तो मैं उसको उतार के नया, तो मैं कैसे कर सकता हूँ कि मैं उसकी ज़िंदगी जो उसको अल्लाह ने दी हुई है और उसने 1 साल अपना इंतज़ार करके अपनी बारी पे यहाँ डायलिसिस सेंटर आया, मैं उसकी बारी किसी और को दे दूँ, तो ये है इंसाफ। उसके बाद है क्वालिटी। तो हमारे स्टाफ मेंबर्स जब आप उनको SOP दे देंगे तो वो ऐसा हो नहीं सकता वो फॉलो ना करें। 1 महीना नहीं करेंगे, 2 महीना नहीं करेंगे, 3 महीना नहीं। आप जब उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे तो आपके सामने ये डिपार्टमेंट मौजूद है। हमारे पेशेंट्स, हम कहते हैं सिर्फ शिकायत करते हैं, ऐसा नहीं। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने आपको बता रहे हैं कि तकरीब जारी है जहां पर ग्रुप लीडर एप्टमा और जिना अस्पताल के चेयरमैन इस वक्त खिताब कर रहे थे। और आपको बताएं कि महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने 20 स्केल 5 से 15 की भर्तियों का अमल रोक दिया। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने इलेक्शन कमीशन के अहकामात की रोशनी में भर्तियों का अमल रोक दिया। सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद चौधरी, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर को लाहौर समेत पंजाब भर के जो टीचिंग इंस्टीट्यूशन हैं, टीचिंग अस्पताल हैं, उनमें स्केल 5 से 15 तक की भर्तियों की दिसंबर में जो है वो इजाज़त दी गई थी, दिसंबर 2022 में, और इसके मुताबिक जो है ये प्रोसेस जारी था। ताहम अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो भर्तियां हैं उसका अमल रोकने पर महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने भी ये तमाम प्रोसेस जो है वो उसको हॉल्ट कर दिया है और तमाम इंस्टीट्यूशन के सरबराहान को यह हदायत की गई है कि जो जारी अमल है भर्तियों का स्केल 5 से 15 तक का, उसको फिलहाल जो है वो मुअत्तल कर दिया जाए और इसके बाद जो है वो दोबारा जब इलेक्शन कमीशन से इजाज़त हासिल कर ली जाएगी उसके बाद इसको फर्दर जो है वो प्रोसीड किया जाएगा। जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। जबकि उधर बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 3 हफ्तों में 90,000 बगैर हेलमेट मोटरसाइकिलिस्ट को चालान टिकट जारी किए गए। तफसीलात जानेंगे इस मुतालिक हसन खालिद हमारे साथ हैं। हसन, बताइएगा। जी हाँ, सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शहर लाहौर की मुख्तलिफ शाहराहों पर हेलमेट ना पहनने वाले मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है और गुज़श्ता 3 हफ्तों के दौरान ट्रैफिक पुलिस ने 90,000 मोटरसाइकिल सवार अफराद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें चालान टिकट्स जारी किए हैं। लेकिन बज़ाहिर तौर पर ऐसा लगता है कि ये कानून जो है वो सिर्फ आम आदमी के लिए है। यही वजह है कि वकला बरादरी और पुलिस एहलकार जो हैं वो इस कानून से ख़ुद को इस्तिस्ना करार दे चुके हैं। शहर की मुख्तलिफ मेन शाहराहों के ऊपर पुलिस एहलकार और वकला बरादरी बगैर हेलमेट सफ़र करते दिखाई देते हैं और दूसरी जानिब जो ट्रैफिक वार्डन्स हैं वो अपने पेटी भाइयों और वकला बरादरी के खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेजा दिखाई देते हैं। इस हवाले से शहरियों के दरमियान भी एक खासी तशवीश पाई जाती है और शहरियों का ये कहना है कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। अगर आम आदमी का बगैर हेलमेट चलान किया जाता है तो दूसरी जानिब जो वर्दी में मलबूस पुलिस एहलकार हैं और वकला बरादरी है जो कि दंदनाते फिरते हैं बगैर हेलमेट के खिलाफ, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती। और उन्होंने जो आला हुकाम है उनसे ये मुतालबा किया है कि कानून की इस रूह को अगर बरकरार रखना है तो कानून सबके लिए बराबर करना होगा। हसन, बहुत शुक्रिया।
शौकत खानम रेस्टोरेंट के करीब देसी क्यूजीन रेस्टोरेंट सील कर दिया गया। PRA कमिश्नर लाहौर डॉक्टर जावेद इकबाल की हिदायत पर कार्रवाई की गई। तफसीलात जानेंगे इस मुतालिक कलीम अख्तर से। जी कलीम, बताइएगा। बिल्कुल, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की जानिब से शौकत खानम हॉस्पिटल के करीब वाक़े एक निजी प्राइवेट रेस्टोरेंट को सेल्स टैक्स की अदम अदायगी पर सील कर दिया गया है। ये कार्रवाई PRA कमिश्नर लाहौर जावेद इकबाल की हदायत के ऊपर इन्फोर्समेंट ऑफिसर उमर फ़ारूक खान ने की है, जो कि इस वक्त मेरे हमरा मौजूद हैं। उनसे ज़रा इस हवाले से मज़ीद गुफ्तगू कर लेते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि मुतअद्दिद बार उनको बताया जाता है कि आप रजिस्टर्स हो जाएँ और जो टैक्स है वो पे करें, लेकिन इसके बावजूद नहीं कर पाते वो, और फिर मजबूरी के तहत आपको जो है वो टैक्स की मद में उनको सील करना पड़ता है। तो ये क्यों वक्त के ऊपर जो टैक्स है वो नहीं अदा कर पाते, इसके पीछे क्या वजूहत हैं? देखें, जो PRA की पॉलिसी है ना, PRA की ये पॉलिसी है कि इन्फोर्समेंट एक्शन सिर्फ उनके अगेंस्ट हम लोग करते हैं जो कि कंसिस्टेंट नॉन कंप्लाइंट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। अब जैसे कि हम इस रेस्टोरेंट की बात करें जिनको हमने सील किया है या सर पे मोहर किया है, वो इस वजह से की है कि पिछले 2.5 साल से ये लोग सेल्स टैक्स की अदायगी नहीं कर रहे थे और अपनी टाइमली रिटर्न्स फाइल नहीं कर रहे थे। जो इनको मुद्दत बार मौके दिए गए, इनको सीलिंग नोटिस रिमाइंडर भी दिए गए, लेकिन तब भी जब ये रजिस्टर नहीं हुए तो इसका मतलब है कि ऑब्वियसली ये डिफ़ॉल्टर्स हैं और इनके ज़हन में कोई ऐसी चीज़ होगी कि इदारा तो हमें पूछ नहीं रहा और एक्शन नहीं कर रहा, तो फिर मजबूरन इदारे को इनको सील करना पड़ा। इसी के साथ साथ तमाम ऐसे और रेस्टोरेंट भी जो कि या तो इदारे के साथ रजिस्टर्ड नहीं है या वो सेल्स टैक्स की अदम अदायगी कर रहे हैं और मंथली सेल्स टैक्स रिटर्न्स फाइल नहीं कर रहे, उनको भी सील किया जा सकता है इन फ्यूचर। अजी बिल्कुल, क्या कहना है कि 2.5 साल का ठीक है, बहुत शुक्रिया कलीम अख्तर। ख़ुसूसी बच्चों से नारवा सलूक, बदअखलाकी के रवैयों की रोकथाम, फाउंटेन हाउस के ज़ेर एहतमाम आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। अहवाल जानते हैं, कोमल असलम हमारे साथ मौजूद हैं। जी कोमल। जी बिल्कुल, मैं फाउंटेन हाउस में मौजूद हूँ और आज यहाँ पर एक रोज़ा इनेकाद किया गया जिसमें ख़ुसूसी बच्चों के साथ नारवा सलूक और बदअखलाकी रवैये पर जो है वो ख़ास तौर पर आगाही दी गई है कि किस तरह जो है वो हमें उन बच्चों के साथ जो है वो तवज्जो उन पर देने की ज़रूरत है, किस तरह हमें उनके साथ सलूक करना है। इसमें बतौर मेहमान ख़ुसूसी जो है वो वेलफेयर ट्रस्ट के जो इजहारुल हक साहब हैं, डायरेक्टर हैं, उन्होंने शिरकत की। इनकी तरफ बढ़ते हैं, इनसे जानते हैं। सर बताइएगा, वालिदैन को कहा जाता है कि वालिदैन को ख़ुसूसी तवज्जो देनी चाहिए, हमारा मुआशरा किस तरह अपना किरदार निभा सकता है, इस हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे तो बच्चे होते हैं, ख़ुसूसी का लफ्ज़ तो इजाफ़ी है। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या हम समझते हैं कि हमारी ज़िम्मेदारियां क्या हैं। ये सारा बोझ हम ख़ानदान पे या माँ बाप पे या बहन भाई। शुक्रिया कोमल असलम। इसी के साथ ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा।